Hello friends, welcome to Northeast PSC exam. Today the topic that we are going to do is related to the mains exams. Today we are going to solve some of the previous year questions related to the GS part, and that is very important, and through those questions we'll try to frame the answers and the approach, and so that we could be able to meet the demand of the question and get the good marks, right? So it will be a very good and very important session, so I advise the student to actually pay attention to this, because once qualifying the prelim exam, obviously you have to appear in the mains, and mains is all about the subjective understanding, right? So you have to write the answer in the mains exams, right? And for that we need to actually, we need to have some kind of a approach, so that we could be able to actually produce the right amount of content in a quality way, right? तो आइए आज हम अपने PYQ मेंस के पहले सेशंस को स्टार्ट करते हैं. Yes, so before we start, let me tell you about our courses that are ongoing here at Northeast PSC exam. So here we are running two batches. One is for the prelim course. In the prelim course, we are covering here two papers, paper one, paper two. Paper one is actually general study, and paper two is the CSET. And what are the features? These features are quite important and can be quite detrimental in your preparation. So first is the live classes, recording of the live classes, interview guidance, weekly tests, PDF notes and practice quizzes, mock tests, and obviously you will be taught by the experienced, well qualified teachers here. And the second kind of a course that here we are actually running is the prelim cum mains course. Here in that we are going to cover all the GS1, GS2, GS3, GS4, including essay writing and the English qualifying paper. So yeah, our approach is a very pragmatic and the practical, and through this you can make your preparation quite organized and systematic, right? इस कोर्स से रिलेटेड किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं. ये हमारी क्यूआर स्कैन है, इसको स्कैन करिए और हमसे कांटेक्ट करिए. वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड. Yeah, so today we are going to deal some of the questions that has already have appeared in exams. The question is from the political science section. So here, yes. So we are going to, the question is from the section political science, or you can also say polity, right? एंड ये क्वेश्चन आपके 2015 में आए हुए थे, आपके अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है. तो सी, सबसे पहले हम इन क्वेश्चंस को समझेंगे कि हमारा फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए, किस तरह के कंटेंट हमें डालने चाहिए क्वेश्चंस में. तो इन क्वेश्चंस के आंसर हमें तकरीबन 250 वर्ड्स में देने हैं. और 250 वर्ड्स में देने का मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी भर दें. हमें वही चीजें लिखनी है जो क्वेश्चंस की डिमांड है. अगर क्वेश्चंस की डिमांड नहीं हम फिल करें और ऐसी चीजें लिख दे, तो ऑब्वियसली हमें मार्क्स नहीं मिलेगा. और ये एक बहुत ही बड़ी एक इशू होता है स्टूडेंट के साथ. कई बार वो बोल के तो आते हैं कि सर हमने पूरे वर्ड्स लिमिट्स में लिखा है, बट जो क्वालिटी होता है और क्वांटिटी होता है, काफी मिसमैच होता है. तो हमें ध्यान रखना जरूरी है इस कॉन्टेक्स्ट में. देखिए, पहले क्वेश्चन जो हमारा है, डू यू एग्री दैट द प्रीएम्बल टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स आइडियल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड द बेसिक प्रिंसिपल विच इट सीक्स टू एस्टैब्लिश एंड प्रमोट. गिव रीजन फॉर योर आंसर्स. ओके, सो एक बार और क्वेश्चन पढ़िए. क्वेश्चन को आंसर करने से पहले इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. In that, our approach is to identify what are the demand of the questions. If we are unable to understand the demand of the question, then obviously we are bound to write the wrong answer. A wrong answer in the sense that we will be writing, not the actual demand, rather the things that is not the demand of the question. So we should be careful about this. Let me read this question again. Do you agree that, क्या आप सहमत है जो प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो आइडियल ऑब्जेक्टिव्स जैसे बेसिक प्रिंसिपल और
को प्रमोट, आइडियल और जो कॉन्स्टिट्यूशनल एथोस प्रिंसिपल्स को प्रमोट करने की बात करता है या नहीं? अगर है तो क्या रीजंस दीजिए। तो क्वेश्चन है हमारा प्रियम्बल के ऊपर। क्या प्रियम्बल के जो आइडियल्स हैं प्रमोट कर रहा है या नहीं? तो कैसे पता चलेगा? इसका अप्रोच देखिए, अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन दैट अप्रोच, ठीक है, सो इन एनी आंसर वी जस्ट actually divide the answer into three parts. The first part is our introduction, second is the body, and third is the conclusion. अब देखिए इंट्रोडक्शन क्या है। द क्वेश्चन इज अबाउट वेदर preamble is promoting the constitutional ethos ideals in the India or not. So first of all, in introduction, obviously topic is about the preamble. So here we have to actually start our introduction with the basic introduction of the preamble. So we can write preamble of India is the horoscope of the constitution. It is also called identity card of the constitution. So you can just start preamble is also referred as the identity card of the constitution, or you can also write preamble is a horoscope of the constitution of India, right? So this can be your introduction, and make sure your introduction must and into, not more, it shouldn't be going more than 2 lines, right? So this is important, because if you write intro in more than 2 line, it will eat up your lots of time. So make sure your introduction must be a smaller, right? It shouldn't be going beyond like 2 or 3 lines, right? So preamble is you can write preamble is refer refer as the identity card sorry. So in an intro part, we can write preamble is refer as the horoscope horoscope or an identity card of the constitution of India, right? Sorry for the bad handwriting, but you can understand. So in introduction, see, it is very brief and very concise. So preamble is referred as horoscope or identity card of the constitution. A very brief and apt introduction. So it should be like that, right? Yeah. Yeah. Now we have the body part. So in the body part, what we can write, as we just understood that here we have to, हमें यहाँ पे पॉइंट्स बताना है, क्या प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल एथोस वैल्यूज को प्रमोट करता है कि नहीं करता। तो हमें प्रियम्बल के बारे में पता होना चाहिए। तो हमें पता होना चाहिए, प्रियम्बल के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखना है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रियम्बल एंड इट्स सिग्निफिकेंस।
ठीक है, ये हमारा एक हेडिंग हो गया, इसमें कुछ पॉइंट लिख दीजिए। जैसे इट रिफ्लेक्ट्स द आइडियल्स of the Constitution of India. It strives to promote social, economic, and political justice, equality. It's, it says from whom the Constitution of India derive its authority. So we say, we actually read we the people of India have solemnly resolved, constitute and adopt this constitution. तो preamble हमें बताता है कि भाई जो constitution है किससे power drive करता है, people of India. So बोलते हैं ना, constitution is a document that actually derive its power from the people, citizen of this country, right? So this can be the significance in the brief. Furthermore, you can also add some point. There are a number of points, right? It also provide insight about the constitutional ethos and principle. So that is important. So these three these points we can mention in the preamble and its significance, right? So yeah, remembers. Now next, okay, so next body we have to talk about the preamble. Yes, you have to admit that in the body you can just make the next point. Yes, the preamble of Indian Constitution promote ideals. तो या अब यहाँ पे आप यू नो दिस इज नाउ हियर इन वी आर, क्वेश्चन में था कि क्या आप एग्री है, क्या सहमत है कि नहीं, तो हमने बोला यस, अब रीजन देंगे, तो रीजन आप दीजिए। रीजन 1, preamble is an important document that talk about nature of the Indian polity, Indian state, rights of the citizens. एग्जाम्पल दीजिए यहाँ पे किसकी बात करता है, जैसे फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, ये मेंटल राइट्स की बात करता है ये, ठीक है। डीपीएचपी, डायरेक्टरी प्रिंसिपल स्टेट वेलफेयर स्टेट, दैट इज बोल सकते हैं इट ऑल्सो talk about the welfare state
ठीक है। थर्ड, yeah, so these are the point in the support. Yes, the preamble promote. Fourth, we can also talk about now. It also promote and encourage citizens' rights and states' responsibilities. रिस्पॉन्सिबल, तो ये कुछ पॉइंट्स है सपोर्ट्स में, इसके साथ हम और भी पॉइंट्स दे सकते हैं सपोर्ट में। यस, तो चार, फोर्थ पॉइंट वी कैन राइट preamble is also helpful in understanding constitutional ethos and principles। फिफ्थ में ये पॉइंट्स क्या है सपोर्ट में आपके, क्योंकि प्रियम्बल एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जैसे हमने इंट्रोडक्शन में देखा कि इट्स अ होरोस्कोप एंड इंट्रोडक्शन। सो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है इसको क्रक्स में समरी टाइप की चीजें लिख दी गई हैं इसके अंदर प्रियम्बल के बारे में। सो प्रियम्बल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इट ऑल्सो टॉक अबाउट secular, socialist and unity and integrity of India. So these are important words, and it was, you can just mention these were added through 42nd constitutional amendment. So remember, we have also studied that in the our demo lecture that these important words secular, socialist, unity, integrity added with the 42nd constitutional amendment. So this is important, right? Yeah, 6th point you can write. It is also used by the judiciary in interpretation of constitution। तो ये कुछ पॉइंट्स आपने लिखे सपोर्ट्स में, राइट। तो ये हमने सपोर्ट्स में कुछ पॉइंट्स लिख दिए। तो देखिए डिमांड टू द पॉइंट्स लिख रहे हैं, राइट। उसके बाद हम वी कैन गो टू द नेक्स्ट पार्ट। यस, तो अब हमें देखो दोनों एस्पेक्ट में लिखना है। ये तो हम रीजन दे रहे हैं कि हाँ बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, आइडियल एंड एथिक्स को प्रमोट करता है, बट थोड़ा सा रीजन भी देना है। तो हावेवर क्या यू कैन ऑल्सो हावेवर, देखो हावेवर, अब सेकंड कॉन्टेक्स्ट, हावेवर देयर आर सम issues example, it has been amended through 42nd amendment, constitutional amendment. It has been prepared after the enactment of the Constitution of India, ठीक है।
many a time, many time government remain fail to realize some of the important provisions, example welfare of citizens. That is also very important, right? And at the same time, resource crunch, that is also one of the issue, because of which government is unable to work on the constitutional ethos and principle, just like welfare, social, economic, political justice. So this can be reason. You can also mention the important reason: amendment, dispute happen, dispute with respect to amendability, amendability of the preamble, preamble, Golaknath case. You can mention Berubari Union case, Berubari Union case, right? Yes. So देखो, so this is also one of the aspects. So we have taken both the sides. नाउ कंक्लूजन, देखो हमने बॉडी डिस्कस कर लिया, अब कंक्लूजन। सॉरी, देखो कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन की सम अप कर रहे हैं हम आंसर को। अब बोलें कि प्रियम्बल ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इज sorry. The preamble of India has been a guiding light that has resulted into safeguard establishing of socialist, secular and democratic republic. So yeah, this you can also conclude with the three lines. So this is how our approach should be. So what we have actually understood, we have understood what should be the introduction in the body part. In the body part हमने दोनों चीजें देखी, रीजन भी बताया कि सपोर्ट भी किया, और कुछ क्रिटिसिज्म भी, मतलब कुछ कंस्ट्रक्टिव वे में कुछ कमियां भी हमने हाईलाइट की, और लास्ट में हम कंक्लूड करते हैं। तो ये हमारा अप्रोच होना था कि पहले में प्रियम्बल है क्या, तो प्रियम्बल को समझाया, फिर उसके कुछ प्रियम्बल की थोड़ी सी क्या सिग्निफिकेंस है प्रियम्बल का, उसके बाद हम बताते हैं कि हाँ हम सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट में हमने 5-6 पॉइंट लेके, और हमने कुछ पॉइंट और इश्यूज में कि भाई क्या कुछ थोड़ा बहुत इशू है तो है क्या, तो उस इश्यूज को भी लिखा, और लास्ट में हम कंक्लूड करते, तो ये हमारा अप्रोच होना चाहिए प्रियम्बल को। जो क्वेश्चंस आया है इस रिस्पेक्ट में, इस क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए, तो दिस शुड बी आवर अप्रोच। सो आई होप आपको समझ में आया है, और अगर आप इससे और भी कुछ चीजें समझना चाहते हैं तो प्लीज जुड़िए हमसे, वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट देयर। अब देखिए सेकंड क्वेश्चंस की बात करते हैं। Yes, so yeah, the first question we have already discussed.
नाउ तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा भाई, डू यू एग्री, देखो पूछा ही गया था आपसे कि डैट द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स द आइडियल ऑब्जेक्टिव बेसिक प्रिंसिपल विच इट सीक्स टू एस्टैब्लिश एंड प्रमोट। तो हमने दे दिया अच्छे से। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर थोड़ा हमें जानने के लिए क्वेश्चन समझना जरूरी है। देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज have been incorporated to ensure a welfare state. Either validate or refute this statement with the justification. So see, the question, इसमें क्वेश्चंस क्या क्या रहा है, इसकी डिमांड क्या है। तो क्वेश्चन है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, तो हमें पता होना चाहिए फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है। जैसा कि हमने देखा, फंडामेंटल राइट सिटीजन्स के लिए है, सिटीजन को के पॉलिटिकल राइट्स को इंश्योर करता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट्स को इंस्ट्रक्शन है कि भाई आप ये मेजर्स अडॉप्ट करें ताकि हमारी कंट्री में वेलफेयर हो लोगों का और वी बिकम प्रोग्रेसिव एंड हेल्दी डेमोक्रेसी, राइट। But when we talk about the fundamental duties, it is actually instruction to the citizens of this country. देखो, we are living in a polity and a democratic setup where we have the fundamental right, but to have a peaceful, a harmonious and progressive state, we need to have a participation of the citizens, right? डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट के थ्रू नहीं कि गवर्नमेंट सारी चीजें सिटीजन्स के लिए कर दे रही है तो अच्छी डेमोक्रेसी नहीं। डेमोक्रेसी में सिविक सेंस होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हमारे पास इन्फॉर्म सिटीजनरी नहीं रहेगी, अवेयर एंड पार्टिसिपेटिव पॉजिटिव प्रोग्रेसिव सिटीजनशिप नहीं रहेगी, और सिविक सेंस नहीं रहेगी, तो ऑब्वियसली हम ना चाह के भी, चाहे हमारे पास कैसी भी डेमोक्रेसी हो, कैसा भी कॉन्स्टिट्यूशन हो, वो बाउंड टू फेल है। तो फंडामेंटल ड्यूटी एंकरेज करता है सिटीजन्स को कि इन वैल्यूज जो है इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल आइडियल, उनको एक्चुअली सिटीजन अडॉप्ट करे अपनी डेली लाइफ में। जैसे कि वी हैव सम ऑफ द फंडामेंटल, लाइक वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर ideal constitutional ideal and the ethos. We must give respect to the dignity of the woman. We must protect our environment. We must promote and cherish the composite and syncretic culture of India. We shouldn't be commenting based on the religion, ethnicity or the race or the caste. Rather, we must actually inculcate the feeling of brotherhood and obviously well-being of all. So this should be the important principle among citizens. If these are missing, then we cannot hope for a better society. So citizens understanding, participation and inculcation of these value will be quite helpful and detrimental for achieving India developed by 2047. So this is how we can also link with some of the ongoing important phrases that are being given by the prime minister or some important ministers. So this will actually make our answer quite unique, right? सो हमने क्या देखा भाई, क्वेश्चन क्या है फंडामेंटल ड्यूटी का, तो हमें बताना है कि भाई क्या ये इंश्योर करता है वेलफेयर स्टेट या नहीं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। अगर इंश्योर करता है तो इसके बारे में पॉइंट बताइए, नहीं तो इसको अगर नकारना है तो इसके नेगेटिव में पॉइंट बताइए कि क्या है भी। फंडामेंटल ड्यूटी हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड टू इंश्योर अ वेलफेयर स्टेट। इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, उसके बाद इधर वैलिडेट, आपको इसको सही बताना है या आपको गलत बताना है, किसके साथ, जस्टिफिकेशन के साथ, तो जस्टिफिकेशन देना है। तो आइए हम इस क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन था हमारा, देखा हमने, फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर था कि ये इंश्योर करता है वेलफेयर स्टेट। क्या इंश्योर करता है ये, वेलफेयर स्टेट। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, इसको ईदर वैलिडेट, वैलिडेट और रेफ्यूट। रेफ्यूट मतलब नकारना है, नकारना। वैलिडेट मतलब यस, बताओ। विथ जस्टिफिकेशन, विथ जस्टिफिकेशन। ओके, तो सबसे पहले देखो, इंट्रोडक्शन होगा हमारा, इंट्रोडक्शन होगा, वही अप्रोच, बॉडी होगी, बॉडी में हम बात करेंगे मैटर की, और एक होगा हमारा कंक्लूजन। यस, इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो क्या होगा, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करेंगे। तो यू कैन जस्ट मेंशन दैट
fundamental duties are have been incorporated through 42nd constitutional amendment based on the स्वरण सिंह कमेटी, जिनको इंदिरा गांधी ने बनाया था। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। थोड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन, और भी हो सकते हैं इंट्रोडक्शन, आप इसको भी ऐसे भी लिख सकते हो। एंड इसके साथ एक और कर दो, इट इज एड्रेस टू द सिटीजन। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटी हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वरण सिंह कमेटी एंड इट एड्रेस टू द सिटीजन। सो ये इंट्रोडक्शन हो गया किसका, फंडामेंटल ड्यूटीज का। तो याद रखिएगा, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ योर फंडामेंटल ड्यूटीज। राइट राइट। इसके बाद हम देखते हैं बॉडी। बॉडी में क्या लिख सकते हैं हम, या देखिए बॉडी में हम क्या क्या लिख सकते हैं, बॉडी इंपॉर्टेंट है लिखना। अब बॉडी में हमें बताना है कि लिख सकते हो कि या सी छोटा सा एक डायग्राम भी बना सकते हो फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में, इंपॉर्टेंट हो सकता है, थोड़ा यूनिक। फंडामेंटल ड्यूटीज ये बना दिया हमने एक सर्कल, इस पे बना दिया भाई एड्रेस टू सिटीजन। ठीक है, जैसे कुछ अब कुछ जो वैल्यूज है मेंशन, कौन सा आर्टिकल में, आर्टिकल 51A। ठीक है, और विच अमेंडमेंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। राइट, अब हम देखते हैं बॉडी के बारे में। देखो हम वैलिडेट करते हैं कि पहले पहले हम रेफ्यूट करते हैं, रेफ्यूट कि भाई नहीं ये नहीं है। यहाँ पे लिखिए फंडामेंटल राइट ड्यूटीज को हम बोल सकते हैं दिस फंडामेंटल ड्यूटीज। राइट, इट इज सॉरी फंडामेंटल ड्यूटी इज एड्रेस टू सिटीजन। सो कुछ ड्यूटी लिख दो एग्जाम्पल के तौर पर, रिस्पेक्ट द आइडियल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या और भी लिखो आप, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट एंड अपहोल्ड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, इसकी भी बात कही गई है। और भी कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो, कुछ फंडामेंटल राइट जो है, चेरिश द syncretic and composite culture of India। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हम लिख रहे हैं। राइट,
या नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसी में ही बॉडी रेफ्यूट वाले में, इट इज नॉट डायरेक्टली अबाउट वेलफेयर, rather it is about civic sense, civic culture, civic culture and citizens duties towards fellow beings, towards fellow beings। ठीक है, तो ये सिटीजन्स की ड्यूटी है, जिस तरह से सिटीजन अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर रहा है, उसी तरह उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई वो दूसरे के राइट्स को भी सम्मान करे और एक अच्छा नागरिक बने। अच्छा नागरिक कैसे बने, वो जो ड्यूटी है उनको इनकॉर्पोरेट करके, उसको प्रैक्टिस करके, राइट। और भी हम लिख सकते हैं, या it is important for strengthening of democracy, राइट। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम रेफ्यूट में डाल रहे हैं, और दूसरी तरफ हम दूसरे पॉइंट्स हम बोल सकते हैं किसमें, वैली वैलिडेट में। देखो अब दूसरा वाला आर्गुमेंट, आर्गुमेंट आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ एफडी। ठीक है, ठीक है, तो नंबर वन आर्गुमेंट दे सकते हो, यस it helps in realizing welfare state, but as when citizens are aware, they play effective role। ठीक है, adherence मतलब फॉलो करना, adherence to fundamental duty would bring peace and stability, that is important component of the welfare। तीसरा लिख सकते हैं, it also bring transparency, accountability in the functioning of the welfare program। तो देखो ये उसका वैलिडेट के, हाँ भी हाँ, फंडामेंटल ड्यूटी है, वो भी सपोर्ट करता है वेलफेयर को, राइट। अब हम कंक्लूड कर सकते हैं इसको, कंक्लूजन। फंडामेंटल ड्यूटीज आर important for realizing the notion of substantive
democracy and that will be helpful. यहीं तक कर सकते हो आप बस, तो यहाँ तक आप हेल्प कर दो शॉर्ट में, यू कैन राइट जस्ट हियर तक, दैट्स इट। सो दिस इज हाउ योर अप्रोच टू, देखो कैसे हमने किया, पहले इंट्रोडक्शन किया हमने फंडामेंटल ड्यूटीज का, उसके बाद हम बात करते हैं दोनों रिफ्यूट भी किया, आर्ग्यूमेंट्स दिए इन फेवर ऑफ द रिफ्यूट, एंड उसके बाद आर्ग्यूमेंट दिए इन सेकेंड कॉन्टेक्स्ट में वैलिडेट करने का, तो ये जस्टिफिकेशन के साथ दिया हमने। अब आइए लास्ट क्वेश्चंस देखते हैं। Yeah. So now we have this last question. The last question, yeah, we have this last question. Explain the function of Election Commission of India. तो बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, आइए हम इसको समझते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन दी फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भाई क्या है फंक्शन इलेक्शन कमीशन इंडिया का? तो इसमें लिखना है, सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं इंट्रो। अगेन इंट्रो में हमें लिखना है क्या? बॉडी। इंट्रो में भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर, आर्टिकल मेंशन कर दीजिए, आर्टिकल मेंशन करेगा तो इट विल क्रिएट अ गुड इमेज। अंडर आर्टिकल 200 324 324, राइट? एंड it play important role in the establishing of stab establishing of representative डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन हो सकता है आपका। अगर हम बॉडी की बात करें तो बॉडी भी इंपॉर्टेंट है इसकी। बॉडी में हम लिखेंगे भाई क्या फंक्शन है, बॉडी में लिखे फंक्शन ऑफ, सीधा फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो भाई इसमें लिखे नंबर 1 में लिखते हैं कंडक्ट इलेक्शन for the post of the president, vice president, member of parliament, राज्य सभा, लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। यस, ठीक है, तो याद रखिएगा ये। तो ये फंक्शंस में दूसरे फंक्शन पे डाल सकते हैं। ठीक है, इलेक्टोरल, यहाँ पे ना इलेक्टोरल रोल डालो, इलेक्टोरल रोल। ठीक है, इट प्रिपेयर वोटर लिस्ट, अपडेशन वर्क भी ये करती है। यस, और फंक्शन नंबर 3 में नंबर 3 में हम क्या डाल सकते हैं? इट प्लेज important role in conducting free and fair election। चौथा में डालिए it supervises
the electoral politics under power given रिप्रेजेंटेटिव, देखो एक एक्ट बनाया है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट, तो ये इंपॉर्टेंट एक्ट है। तो सुपरवाइज भी करता है और पनिशमेंट भी करता है, इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस को कब भी करता है, राइट। इंपॉर्टेंट बॉडी है। इट ऑल्सो प्ले important role in allocation of electoral symbol registration of political parties. That's very very important. It also play role in disqualification of elected members of Lok Sabha, state legislatures assembly. So that is a very very important also. Next, up some of the outcomes. लिख दो, successfully conducted world's largest election reduce the role of money and muscle power. तीसरा, it played good role in establishing level playing field. तो दैट्स इंपॉर्टेंट। लेवल प्लेइंग फील्ड मतलब सबको राइट हो इलेक्शन लड़ने का, ये नहीं कि जो पैसे वाले हैं, नेता है, मंत्री है, वही जीते इलेक्शन। एक आम आदमी भी खड़ा हो तो वो भी जीत सके इलेक्शन, तो लेवल प्लेइंग फील्ड है, भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हमें इसको एड्रेस करना है। चौथा आप बात कर सकते हो, इट कोऑर्डिनेट्स विथ इंटरनेशनल बॉडीज ऑल्सो। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन से दो हमने डिस्कस किए, राइट। या उसके बाद हम कंक्लूजन लिख सकते हैं। कंक्लूजन में लिख सकते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज बिन प्लेइंग important role, however it more power should be given, more power and authority should be given to the ESI for ensuring free and fair election. So this is how. So yeah, these were some of the basic points, but here the major objective of the class of this session was to actually understand what should be the approach when we are writing the answer. So when we are writing the answer, we must make the framework that on the basis of that framework we must write the answer. What are that framework? So intro should be there,
body should be there, and the conclusion should be there. So these three part form the important basic structure of any good answer, right? In introduction we must be writing the इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू द टॉपिक। इंट्रोडक्शन आपके टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए और ब्रीफ होना चाहिए, 2 या 3 लाइन, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपका टाइम खत्म होता है, टाइम कम होता है। दूसरी चीज़ बॉडी, बॉडी में हमें थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली बात करनी है कि दोनों चीज़ों की बात करनी कि है तो है, नहीं है तो नहीं है, और कंक्लूजन में हमारा कंक्लूजन क्या है। तो कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव वे फॉरवर्ड होना चाहिए, ठीक है, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव वे फॉरवर्ड होना चाहिए। तो ऐसे अप्रोच को अगर हम फॉलो करते हैं तो I believe that anyone can get a good marks. Content can be obviously improved, but at the same time, we must focus on the approach. So content comes once we actually go through the process, revise the things, learn the things. Content comes, but approach should be right. Once your approach is right, then obviously you are going to get a good marks, right? So we have understood the approach, and we have discussed three questions that have already came in exams, right? So the kind of approach that we have adopted is also equally important. So yeah, ये 3 क्वेश्चंस हमने आज डिस्कस किए, और आई होप आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा इन 3 क्वेश्चंस को जानने के बाद। यस, तो पहला हमने देखा भाई प्रियम्बल से रिलेटेड क्वेश्चन था, दूसरा हमारा फंडामेंटल ड्यूटी से, और तीसरा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। आई होप ये अप्रोच आपको समझ में आया, और इस अप्रोच से आप प्रैक्टिस करिए, कोशिश करिए अपने आंसर्स को लिखने का, अब क्योंकि प्रीलिम के बाद मेंस लिखना होता है, और मेंस ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, राइट? और ऑब्वियसली अब आपकी आंसर राइटिंग में किस तरह की हेल्प के लिए अगर हम आपकी मदद कर पाए तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट करिए, बेहिचक कांटेक्ट करिए। वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू इन दैट रिगार्ड। So thank you for your patience, and thank you for your support. Here we'll come again with the next session on answer writing that will be quite beneficial for you. So I wish you all the best to all. Thank you.